महावीर सर। हाँ सर। यस। हेलो। यस सर। महावीर सर, आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं क्या आप? हाँ मैं कर पाता हूँ। अच्छा, ओके सर। सर विजिबल है? हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। तो जब आप बोलेंगे तब स्टार्ट करते हैं सर। हाँ सर, बस 2 मिनट और लूंगा मैं। ठीक है। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। महावीर सर, स्टार्ट कर सकते हैं अपन। स्टार्ट करें? हाँ सर, ठीक है प्लीज। सर। ओके। So, good afternoon to all my colleagues and respected sir. I, Mahavir Jain, would like to present a presentation on the COPO mapping as we discussed with the Mahendra sir. So, we are proceeding further. So, first, we would like to just elaborate some terms like PEO, PO, PSO, CEO, and CO. So I think PEO stands for means it should be program educational objectives. PO stands for program outcomes. PSO stands for program specific outcomes, and CEO stands for course educational objectives, and CO stands for course outcomes. So these are most familiar words. Those have been asked while we going through the NBA process. So these terms should be known to everyone. The agenda of today's presentation is about the OBE accreditation process, NBA vision, mission and objectives, PO, CO, PSO mapping, and the assessment and the evaluation. So definitely we all know what is the OBE, that is the object-based education. Mahen sir, my voice is loud and clear? Yes sir, it is clear. Okay, okay. Everyone know the we are going towards the OBE of outcome-based education. Every program should be attached with the outcome-based education. Outcome should be fixed. Whenever we are delivering the lecture to the student, we should know the on which path we need to take the student. So that is about the object outcome based education, that is the OBE. So NBA promotes it, the NBA adopt the outcome based education, it also fixes some program outcomes. Yes.
And accreditation is the process of just improving the quality process so that we could improve the quality of teaching, and we can improve the quality of student learning. So this is the process. The accreditation basically is a process that is governed by the NBA committee, and it also accredited the process that we are delivering to the students. So what is NBA? Definitely the NBA is a body that just regulate the process, the teaching process that we are delivering in our institutes. And as it is written here, it is the National Board of Accreditation, initially established by the AICTE, and autonomous body with effect from 7 January 2010. It is working in the field of technical education and as well as in other education also. And the vision to be an accredited agency of international standard by ensuring the highest degree of credibility. So this is the vision, and to complete this vision, NBA also have some mission to stimulate the quality of teaching, self-evaluation, and the accountability in the higher education system, which help institutions realize their academic objectives and adopt teaching practices. So, adopting the best practices throughout the world, we try to achieve the vision of the NBA, and for that we are particularly having the missions also. The objectives of the NBA is assess and credit the technical education programs, evolve standards and the parameters for assessment, promote excellence through a benchmarking process. So program educational objectives, what are they? So basically program educational objective is the answer why does the program exist in the first place. So we can relate the PO like this: whenever we are launching some program for the students, so first we have to determine what are the objectives of this programs. So PEO basically the primary goal of the programs when we are launching the first time. So whenever we are launching suppose any program for the student, we must determine the particular objectives of those programs. Those are called the PEO. So definitely there are some POs like preparation, professionalism, lifelong learning. So these are the common PO. Every program should follow these objectives. Vision and the mission. So vision is a futuristic statement, and mission is the process by which we can achieve the vision. So taking the example of Acropolis Institute, we are having some vision to be an academic leader, and to achieve that vision, we are having some particular missions like to create an intellectual stimulating learning environment, to impart value-based, innovative, and research-oriented education. It can be the example. So vision and mission particularly are different from each and every college. So every individual college or every technical college can simulate their vision and the mission according to their choices. So these are particularly based on the higher authorities of the student. So here we are taking the example of Acropolis. What are the vision and the mission? CSE department, particularly in every college we are having different departments. So like the CSE department of Acropolis, we are having vision, but that vision should be aligned with the college vision. Or for achieving that vision, we are having particularly some missions of the department like professional education, enhancing innovations, employability and the entrepreneurship, professional behavior. So these are the missions of the department. It can be different also in other cases. And the course objectives versus the outcomes. The objectives basically the teacher centric, and the outcomes are the student centric. So whenever we are planning to deliver any course to the students, the teacher should be particularly should be confined to what he want to deliver in the class. So that is the objectives of the course. Suppose we are delivering the data structures, so before going to deliver the data structures, faculty member or a teacher should have a vision, must have a objectives to what he want to achieve after completing that subject or course.
course outcomes, definitely what we are expecting from the students and how we would analyze the performance of the students. So suddenly, relatively the outcomes are student centric and the objectives are teacher centric. So this is the relation. The objectives are defined by the teacher and instructions are given to the students how they can achieve those objectives. After achieving the objectives, it will become the outcomes. So in this diagram, we can understand what is the relationship between the objectives and the outcomes. So outcomes, objectives are framed by the student, by the teacher, and the instructions are given how those objectives can be achieved. What is the process for achieving the objectives? After that, it becomes the outcomes. Program outcomes, these program outcomes are defined, already defined. We are having the 12 program outcomes, or we follow this, normally these outcomes in the technical education. PO1 is the engineering knowledge, PO2 problem analysis, PO3 design development of solutions, conduct investigation, modern tools uses. So these are the standard 12 program outcomes. In the technical education, we adopt these 12 outcomes. These outcomes are fixed for all the technical educations, especially in the BTech area. So we are having the defined 12 program outcomes here. Now the PSOs. So as we already learned, the PO are the fixed. So in some cases, the program demands more outcomes. In that case, we can add the PSOs, that is the program specific outcomes. So in some cases, the program is very specific and it do not follow all the program outcomes, that is the 12. So we can add more specific outcomes to the program. Those are called the PSOs. So here is an example of the Acropolis. We are having the PSO1, make use of modern languages in case of the computer science, but in case of other branches, it can be different also. So there are 3 PSOs. So certainly this diagram explains relationship between the course outcomes and the program outcomes. So as we know, the program outcomes have been determined as soon as we launch the program. For achieving those program outcomes, we need to design some of the course outcomes. So with the help of individual courses or subjects, we are trying to achieve the program outcome. That is why here the CO is just like a arrow and the PO is just like a target. So that is why the mapping is required. So when we talk about the COPO mapping, why we are doing the mapping? Because the PO is the fix for the program, and with the help of the individual subjects that we are delivering in the particular semesters, we are trying to achieve those outcomes with the help of course objectives and the course outcomes. Like in the case of the data structure, the data structures having some predefined curriculum and it also have predefined course objectives and the course outcomes. That is why we need to align the program outcomes and the course outcomes. Otherwise, we will not be able to determine whether we achieve the program outcomes or not. That is why we go for the mapping, COPO mapping. That is why it is called the COPO mapping, course outcome versus the program outcomes. So that relationship can be established. So as you map accurately between the CO and the PO, your target will be hit on the right place. Otherwise, you can miss the target. Okay, so every course, if hit on the right target, then overall all the subjects will contribute in achieving the final goal or final outcomes. Am I clear, Mahin sir? And audible also? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now this is the curriculum design and flow. So whenever we launch any program, a new program, first we determine the PEO. First we determine the program educational objectives. What goal the program is having. So what are the goals that we want to achieve with the help of that program?
After that, we decide the program outcomes, then the curriculum and teaching learning, and the course outcomes. So these three parameters are interdependent on each other. So when we define the curriculum, teaching learning process, it goes to the outcome, then it ultimately defines the program outcomes. This is the Bloom's taxonomy that we all know. And this is the process diagram, how we can achieve. Suppose for individual faculty, one faculty is teaching the one subject. So how he can go, he and she can go for the mapping, and how he can understand what role he need to play in the process of NBA. So whenever you allotted for a subject, you just ask for scheme and the syllabus. You go for the scheme and the syllabus. Definitely you download the scheme and the syllabus from the RGPB website. Then you define the course objectives, then you define the course outcomes. After defining the course outcomes, you need to define the tools identification, because whenever you are defining the outcomes, you also need to define how would you analyze those outcomes, whether the outcomes have been achieved or not from the student perspective. Okay, so tools identification means the methods by which you are going to evaluate the course outcomes. After that, the marks distribution. If you have identified the methods, then allot the marks to the particular method. Suppose MST, you have decided that you will take the 2 MST during the semester, and you have assigned the 20 marks for each MST. So MST is the tool and the marks is the 20. After that, you will assess the MST marks. After performing the MST, you will assess how the student have performed in that particular method. After that, you will go for the mapping. Result in the range means the mapping will be before, but after that we will achieve the result between 1 to 3, whether we have achieved the target or not. And calculate PO and PSO attainment. Finally, we will go for the attainment, whether we have achieved the attainment or not. So this process is clear? Or any question here? Because after this we are going. Mohit sir. क्या सर? क्लियर है? Yes, sir. You please carry on. ठीक है. So after this, Yes, sir. we will move on the practical aspect, or finally the Excel sheet that we are going to fill. Okay. Now this is the target. How we can set the target? 60% students getting 70% marks and above. The attainment level will be 3. 40% and above student is getting 70% marks and above. The attainment level is 2. Otherwise, attainment level will be the 1. So this target can be set according to the institutions. Normally, it is said the institution, when he is going for the first time for the NBA accreditation, he must set the low target. He must set the low target. Otherwise, these targets can be changed accordingly as per the need and the requirement of the college. So here there are the two targets. First one is the student, number of student, and here is the percentage of that method. So in case the 60% student covering the 70% marks and above in particular method, suppose in MST, if 60% students are getting the 70% marks, then my target is achieved and my attainment level will be the 3. If 40% and above student is getting 70% marks, then the attainment level is 2. So here in particular method, we are changing the number of students, not changing the target. Suppose I am taking the example of MST. I have said the MST marks should be 70%. Now I am varying the number of students. If 60% get 70%, then the attainment level 3. If 40% get 70%, then attainment level 2. If 40% get 70% or less than 40% get 70%, then the attainment level is 1. So this is the way how we can set the target.
It can be different also. It can be changed also in case of the institutions. Okay. So this is the one website with the help of which we can just set the objectives. My screen is visible, Mayan sir? हाँ सर, am I audible? यस सर, ऑडिबल। ठीक है सर। सर कुछ डाउट है एक फैकल्टी। जी जी बताइए। अगर आपका रिजल्ट परसेंट से नीचे है उन बच्चों का जिनको 70 क्या सर? सर देर इज वन डाउट। हाँ। कम आए हैं वो मान लीजिए 40 एक मिनट में बोलता हूँ फैकल्टी को। उसके लिए हमने 1 दिया है 40 से क्या बोल रहे हैं सर? आपने बताया जैसे सर। हेलो हाँ सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये क्राइटेरिया टारगेट सेटिंग वाला जो आपने बताया ना, वो थोड़ा समझना चाह रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था उसमें हम लोगों को। जी जी बताइए सर। इसमें एक्चुअली 3 आपने टारगेट्स लिखे हैं कि 60% स्टूडेंट्स गेटिंग 70% मार्क्स एंड अबव, तो अटेनमेंट लेवल वुड बी 3, करेक्ट। राइट? तो लेट्स से अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 मार्क्स हैं, जी तो इस कंडीशन में सर फर्स्ट वाला क्राइटेरिया जो है उसमें 60 स्टूडेंट्स ने 70% से ऊपर मतलब 70 मार्क्स अचीव किए, करेक्ट। राइट? और if 40% मतलब 40 स्टूडेंट ने 70 से ऊपर करे हैं या 40 से कम वालों ने करे हैं 70 से ऊपर, तो ये सर एक पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के उतने स्टूडेंट्स की उसमें देना है हमको। हाँ, जैसे आपकी क्लास में सपोज आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास में जी 100 स्टूडेंट है, ठीक है। जी अब आपने टारगेट जी। सेट किया कि 70% मार्क्स तो आना ही चाहिए, ये मिनिमम है। अब आप जो वेरी कर रहे हैं वो स्टूडेंट का नंबर वेरी कर रहे हैं, तो 60% स्टूडेंट का अगर 70% मार्क्स आता है तो अटेनमेंट हमारा 3 हो जाएगा। और अगर 60% और 40% के बीच में है, 60% से कम और 40% या उससे ज़्यादा, तो अटेनमेंट लेवल क्या हो जाएगा 2, पर टारगेट तो हमारा 70% ही है। ओके ओके। और थर्ड वाला जो समझ केस है उसमें 40% से कम स्टूडेंट है, सपोज 100 में से केवल 40 या 30 बच्चों के ही 70% मार्क्स आए, जी तो उस केस में केवल 30 बच्चों के 70% मार्क्स आए, बाकी रिमेनिंग के नहीं आए, तो उस केस में अटेनमेंट लेवल 1 हो जाएगा। दैट मींस हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, हाँ, तो हम लेवल 1 को अटेंड कर पाए। करेक्ट और करेक्ट, अगर हमने एक्सपेक्ट किया था कि 60% से ऊपर बच्चे हमारे 70% ले आएंगे तो लेवल 3 हो जाएगा। लेवल 3 हो जाएगा, करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके। यू। तो आई थिंक ये वेबसाइट में एक्सप्लेन कर रहा था, ये वेबसाइट हमने देख ली थी क्या? बीच में नेट चला गया था मेरा। महेंद्र सर, महेंद्र
महेंद्र सर आवाज आ रही मेरी? महेंद्र सर हेलो, यस सर। आवाज कुछ आ रही डाउट है और है सर, एक दो फैकल्टी के। जी जी बताइए बताइए। जी, अंकिता मैडम। यस यस प्लीज प्लीज मैम। Hello, Bhavir यस sir. यस प्लीज मैम प्लीज। Sir, in the result, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। यस मैम यस प्लीज। so do we need to convert into marks? We get the grades in the result. Yes. No, no, no. So we, The grade will be okay, considered as it is. That we will okay. that we will show you in case of when we will fill the assessment. That we will see in the Excel sheet soon. Yes, sir, yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. To convert to Anyone else? Yes, Mahesh sir. Please go ahead. Go ahead. So this is the website. With the help of this, sir, my website, my screen is visible. Yes, sir. So with the help of this website, we can just frame the objectives, course object. How? The who is the learner. So I can write here the engineering student. You click the next. You can just select the any verb here. You need to select the verb. So according to the Bloom's label, here are the defined the remembering, understanding, applying, analyzing, the evaluating, creating. You can click any verb, so like remembering. In case of the remembering, there are alternatively different verbs are here. So you can just create, just you can select the describe. Next, what is the task the learner has to do? Uh, push operation in stack. Next, condition after completing first unit. So this is the objective. Engineering student will be able to describe push operation in a stack after completing first unit. So this is the one reference that you can use while you are defining your objective. Just I am giving this link in the chat box. You can use this. Okay. Now we are moving on the Excel part. Mayan sir, screen visible है? Yes, sir. It is visible. चलिए, अब इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, डायरेक्टली ये तो सब समझने के लिए था, पर हमें तो डायरेक्टली एक्सेल शीट भरना होता है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो ये तो फर्स्ट है। अब आते हैं पीआई इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सीओपीओ मैपिंग करना है। तो सीओपीओ मैपिंग के लिए नॉर्मली पहले हम ऐसा करते थे कि हम डायरेक्टली 1 2 3 मैप करते थे, पर यहाँ पर एक अलग से हमने लिया हुआ है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो पीआई है परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मैप करेंगे इसके साथ में। तो अपन समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हमने डिफाइन कर लिए और उसके कोर्स आउटकम हमने डिफाइन कर लिए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स वैसे भी टीचर सेंट्रिक हैं, आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डेटा स्ट्रक्चर एंड दीज आर द आउटकम्स फॉर द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर द मैपिंग, तो सीओपीओ मैपिंग, ओके।
तो PO1 is the engineering knowledge. So PO1 is divided into the different competency levels, like the 4 competency levels, and each competency is divided into the performance indicators. ओके, तो हमें डायरेक्टली मैप नहीं करना है. तो नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले COPO को डायरेक्ट मैप करते थे. अब यहाँ पर फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी रीजन और मोस्ट क्लियर रीजन PO को हमने डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज और इंडिकेटर्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं PO1 की. तो PO1 हमारा मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो PO1 बेसिकली डिवाइडेड है 4 कॉम्पिटेंसीज में, और हर एक कॉम्पिटेंसीज भी डिवाइडेड है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, जिसको हम बोलते हैं PI लेवल, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. करेक्ट. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर येलो एरिया. तो अब हम बात करते हैं कि PO1 का जो पहला इंडिकेटर है 1.1.1, ये क्या बोलता है, अप्लाई द नॉलेज ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अब आपको ये देखना है कि ये जो इंडिकेटर है, क्या मेरे किसी यूनिट में, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 मैं क्या इन टूल्स का यूज करके कुछ करवाने वाला हूँ क्या, या मेरे डेटा स्ट्रक्चर में ये टूल कहीं यूज में आएंगे या नहीं आएंगे, या मैं इन टूल का यूज बच्चों से करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ. अगर आपको लगता है कि ये टूल्स आप यूज करवाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं. तो आपको केवल क्या लिखना है, या तो 1 या ब्लैंक, या तो आप खाली छोड़ सकते हैं या आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं. उसी तरीके से आपको देखना है कि यूनिट 2 में ये जो इंडिकेटर ये काम आएगा या नहीं आएगा. उसी तरीके से यूनिट 3, 4 एंड 5. तो अगर वो टूल्स अगर आप यूज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से वो जो इंडिकेटर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके आउटकम को अचीव करने में, तो उस केस में आप यहाँ उसको मैप कर देंगे. मैपिंग का मतलब यहाँ पर है या तो 1 या नथिंग. इज दिस क्लियर? महेंद्र सर? Yes, sir. यस सर, इट इज क्लियर. क्लियर है ना. उसी तरीके से PO1 का जो दूसरा हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है 1.1.2, ये क्या कहता है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्यूइंग थ्योरी इन मॉडलिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, डेटा एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. तो क्या ये जो इंडिकेटर है ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके आउटकम्स को अचीव करने में? अगर आपका आंसर यस है तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं. तो उसी तरीके से आपको हर एक यूनिट के लिए एनालाइज करना है, क्या CO1 में ये कंट्रीब्यूट करेगा, CO2 में कंट्रीब्यूट करेगा, 3 में कंट्रीब्यूट करेगा, 4 और 5. तो नॉर्मली हमने यहाँ पे जो कोर्स आउटकम बनाते हैं तो हर यूनिट का हम 1 बनाते हैं. मतलब ये एक तरीका भी है कि हमारा जो काम है वो हम कम कर लें, अदरवाइज हम हर यूनिट के 1 से अधिक आउटकम भी बना सकते हैं. तो फॉर द ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी वी नॉर्मली फॉर्म 1 आउटकम फॉर 1 यूनिट. दिस इज आवर चॉइस फॉर सिंप्लिसिटी रीजन. तो अगर हम CO1 बोल रहे हैं इसका मतलब वो यूनिट बनी है. तो अब आपको ये देखना है क्या ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिफरेंट यूनिट्स या CO के लिए एप्लीकेबल है या नहीं. ठीक है, मैं एक और एडवाइस करता हूँ, नॉर्मली जब भी आप कहीं पर भी मैप लिखें, जैसे आपने बोला कि 1.1.1 CO1 के साथ में मैप होता है, तो इट्स माय सजेशन, मतलब ये कहीं ऐसा मैंने भी देखा है, पर मेरी तरफ से एक फीडबैक है इसमें, आप जब भी 1 लिख रहे हैं तो आप उस यूनिट के कम से कम 3 क्वेश्चन बना लें. अगर आपको लगता है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर काम में आएगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो ऐसे 3 क्वेश्चन आप फॉर्म कर लें जहां पर आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का यूज करके डेटा स्ट्रक्चर में कुछ करवा रहे हैं. तो वो 3 क्वेश्चन आप फॉर्म कर लें. तो ऐसे जहां पर भी आप उसको मैप करते हैं उस मैपिंग के साथ साथ में आप 3 क्वेश्चन बना लें. जैसे अल्टीमेटली जब आप कोई मेथड यूज करेंगे या MST में लेंगे तो वो क्वेश्चन अब आप पूछेंगे. तो मैपिंग का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली हमने 1 2 3 लिख दिया और मैप हो गया, और जब हम पेपर बनाते हैं तो हम मैपिंग को देखते ही नहीं है कि हमने क्या मैप किया था, है ना. नॉर्मली हम यूज करते हैं कि COPO मैपिंग करके हमने छोड़ दी, और जब हम MST बनाते हैं या हम MCQ पेपर बनाते हैं या हम कोई भी और चीज़ कराते हैं तो हम मैपिंग को देखते ही नहीं है, हम अपने मन से कोई भी पेपर बना लेते हैं. तो जबकि प्रोसेस ये है कि जब आप मैप कर रहे हैं, तो जब आपने बोला कि CO1 मेरा 1.1.1 के साथ मैप होता है, तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप स्टूडेंट से पूछने वाले हैं. करेक्ट. तो इट इज सजेस्टेड कि आप जब भी किसी इंडिकेटर को CO के साथ मैप करें तो उसके 3 क्वेश्चन आप फ्रेम कर लें,
और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। तो अगर इस क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल टेक्निक्स, तो ये जितने भी मेथड्स हैं या जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स का डेटा स्ट्रक्चर में क्या यूज है और आप क्या पूछने वाले हैं। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आप फ्रेम कर लें, तो आप देखेंगे अगर आपने लिखा है 1 ये भी मैप कर रहा है, तो ऐसे यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस इंडिकेटर को फुलफिल करने के लिए आपने 15 क्वेश्चन या फॉर्म कर लिए। अब उन 15 क्वेश्चंस को आप अलग अलग मेथड्स में पूछ सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन आप एमएसटी में पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप इंटरनल वाइवा में पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लैब में करा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप दूसरे मेथड्स में या वाइवा वगैरह में करा सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर आपने लिखा 1.3 अप्लाई इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, और आपने बोला कि यूनिट 1 भी मैप करती है, यूनिट 2 भी मैप करती है, 3, 4, 5 सभी मैप करते हैं। तो अब यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन बना रहे हैं कि ऐसे इंजीनियरिंग के कौन से फंडामेंटल्स हैं जो मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स के आउटकम्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो 3 क्वेश्चन बनाने से होगा ये कि आपको पता होगा कि ये 3 क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट से पूछना है या मुझे किसी मेथड में उसको इंक्लूड करना है। तो जब वो इंक्लूड करेंगे तभी बच्चा अपना परफॉर्म करेगा उनके ऊपर, है ना। तो उन इंडिकेटर्स के ऊपर बच्चा जब परफॉर्म करेगा तो बच्चे का रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद फिर हम एवेल्यूट कर पाएंगे कि बच्चे ने उस इंडिकेटर में कैसा परफॉर्म किया, उसका क्या आउटकम है, रिजल्ट्स क्या है, असेसमेंट क्या है। तो दिस इज द गुड वे टू जस्टिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सीओ एंड द पीओ। तो ये आंसर भी हो सकता है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 2 और 3। कोई हमसे पूछता है 3 हमने क्यों लिखा, तो वो हमें नहीं पता कि तो हमें लगा के लिख दिया। पर दिस कैन बी द जस्टिफिकेशन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बता सकते हैं कि आपने वहाँ 3 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लगता है ये मैप है। तो अगर आप हाईली मैपिंग कर रहे हैं तो आप 3 क्वेश्चन बना लें, अगर आप 2 लिख रहे हैं तो 2 क्वेश्चन बना लें, अगर आप 1 लिख रहे हैं तो फाइनली उधर अपन जब मैपिंग करेंगे तब और क्लियर होगा हमें। तो ये क्लियर है क्या, इसमें कोई डिफिकल्टी? महेंद्र सर नो। है ना। तो इसी तरीके से आप हर एक पीओ के लिए मैपिंग कर सकते हैं। PO1, PO2, PO3, PO4, PO5 ऐसे 12 पीओ यहाँ दिए हुए हैं। हर पीओ का कॉम्पिटेंसी लेवल और उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर लेवल PI लेवल दिया हुआ है। तो आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए देखना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो मेरे आउटकम को अचीव करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप वहाँ उसको मैप कर देंगे। ठीक है। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, तो इसको कंप्लीट करने के बाद फाइनली यू विल गेट दिस टेबल। ये जो टेबल है ये हमारा फाइनली COPO मैपिंग है। तो ये जो सेकंड वाली सीट है, इस सीट में केवल जो आपके मतलब का है या जो हमें समझना है वो ये मैपिंग है। तो ये मैपिंग हमारी कहाँ से आ रही है, इस PI इंडेक्स से। तो ऑटोमेटिकली वो तो एक्सेल सीट तो अपन बना सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। तो ये एक्सेल सीट को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जैसे ही आप यहाँ पर 1 1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेगा कि वो 3 है या 2 है या 1 है ना। तो इसमें कोई डिफिकल्टी? तो दिस इज कॉल्ड द COPO मैपिंग कि हमारा COPO से कितना मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है, और PO2 से 2 मैप कर रहा है। तो ये मैपिंग हमें मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ PI इंडेक्स, जो यहाँ पर हम 1 1 जो लिख रहे हैं तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि वो स्ट्रांगली मैप्ड है या मॉडरेटली मैप्ड है या लो मैप्ड है। तो 1 जो होता है वो लो है, 2 जो है मॉडरेट है, 3 जो हमारा हाईली मैपिंग है विथ CO एंड द PO। इसमें कोई डिफिकल्टी? महेंद्र सर इसका ये जो परसेंटेज लेवल है, इसकी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट फिक्स है क्या, या ऐसा कुछ नहीं है? कौन सा परसेंटेज? ये थ्रेशोल्ड के साइड में जो कॉलम है। अच्छा ये ठीक है। तो इसको वैसे तो ये सबको सीखने की जरूरत नहीं है, कोई एक जना भी सीख लेगा तो एक बार आप डिसाइड कर लेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो हमने डिसाइड किया 67%, कि अगर जब हम COPO मैपिंग कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जो आपका 1 1 जो आपने लिखे हैं, है ना, तो अपन यहाँ से समझते हैं। जैसे PO1 के लिए टोटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर कितने, 5, आपने मैप कितने किए, 3, तो ग्रेड कितनी आएगी, 3 आएगी। समझ रहे हैं आप बात? मतलब PI इंडेक्स में यहाँ पर कितने हैं, ये 1 2 3 4 5। तो PO1 के अंदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर कितने हैं, टोटल 5 इंडिकेटर हैं, जिसमें से 4 आपने मैप किए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 टोटल इंडिकेटर हैं, 4 मेरे मैप्ड हैं
तो इसकी ग्रेड कितनी आएगी, 3 आएगी। ग्रेड कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके। तो 5 में से 4 का मतलब क्या होगा, लगभग अपना 80%। तो 80% मतलब वो 67% से ज़्यादा है, इसलिए क्या मैपिंग क्या आ रही है हमारी, 3 आ रही है यहाँ पे। ये जो आपको मैपिंग दिख रही है वो 3 है। सर क्लियर है? ठीक है सर। और जहाँ तक ये परसेंटेज का लेवल है, ये 67% हमने लिया है, आप और ज़्यादा भी कर, नॉर्मली 67 लेते हैं। ये मैंने भी मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, पहले ऐसा नहीं था, पर बहुत सारा देख के, तो कई जो मैंने जो मैनुअल्स पढ़े थे दूसरे कॉलेजेस वगैरह के, तो वहाँ पर भी उन्होंने 67 और 34 लिया था। तो इसलिए अपन भी उसी को फॉलो करके चल रहे हैं। तो परसेंटेज लेवल मतलब अगर 67% मतलब अगर 5 इंडिकेटर है और 4 मैप कर जाते हैं या 3 मैप कर जाते हैं, तो आई थिंक उसका लेवल अगर 67% है और उससे ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मैपिंग है वो स्ट्रांगली मैप्ड है, मतलब सी और पीओ की जो मैपिंग है वो स्ट्रांगली मैप्ड है। तो अगर वो उससे कम है तो हम 2 देते हैं, और वो 34 से भी कम है तो हम उसको 1 देते हैं, मॉडरेटली मैप्ड। और डेफिनेटली वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो लिखते समय यहाँ आपको ध्यान है कि 1 कब आएगा, जब वो 0 और 34 के बीच में होगा, ना कि 0 होगा, है ना। तो ये तो एक्सेल शीट केवल इसको डिज़ाइन करने के हिसाब से है, बाकी समझना है कि 67 या उससे ऊपर है तो 3, 34 और 67 के बीच में है तो 2, और 0 और 34 के बीच में है तो 1। क्लियर? तो ये जो सीओपीओ मैपिंग है ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़े इसमें सर। यस सर। चलिए, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन द सीओपीओ अटेनमेंट। तो ये एक एक्सेल सीट है। अब आप यहाँ पर जो येलो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो येलो एरिया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ाएंगे तो हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सी मेथड यूज़ करना है। तो ऊपर आप ये जो देख रहे हैं ये मेथड्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स, जैसे MST है, थ्योरी क्विज, थ्योरी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल वर्क, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल क्विज, प्रैक्टिकल वाइवा बोर्ड, सर्वे, केस स्टडी, मिनी प्रोजेक्ट, एड ऑन। तो जितने भी पॉसिबल मेथड्स हम सोच सकते थे उस टाइम पे जब ये बनाया था, तो वो सारी मेथड हमने यहाँ इंक्लूड कर लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मेथड और इंक्लूड करना है, दीज आर कॉल्ड द असेसमेंट मेथड्स, है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट मेथड्स कहते हैं। और आपको लगता है कि और भी असेसमेंट मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो येलो वाला एरिया है केवल उसी को एडिट करना है। तो बनाते समय ध्यान रखा गया था कि यूज़र की ईज के हिसाब से कि उसको बताया जाए कि क्या एडिट करना है। तो जो येलो एरिया है ना, उस एरिया में अगर आप एंट्री करेंगे तो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सी वाला कॉलम। तो इस कॉलम में आप देखिए, आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लगे, है ना। तो सपोज डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टोटल 5 यूनिट हैं, तो यूनिट 1 को कंप्लीट करने में आपने 10 लेक्चर लिए, यूनिट 2 को कंप्लीट करने में आपने 9 लेक्चर लिए, यूनिट 3 को कंप्लीट करने में आपने 10 लेक्चर लिए, यूनिट 4 को कंप्लीट करने में आपने 8 लेक्चर लिए, और यूनिट 5 को कंप्लीट करने में आपने 10 लेक्चर लिए। तो टोटल कितने लेक्चर लगे आपके, 47 लेक्चर्स लगे डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये तो हमने लेक्चर की डिटेल दे दी हमें। उसके बाद आप अटेंडेंस का वेटेज कितना देते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या 2-2 मार्क्स दे दिए, तो टोटल अटेंडेंस का वेटेज कितना है, 10। और अगर यूनिट वाइज देखें तो हमने 2-2 नंबर असाइन कर दिए। मतलब अगर कोई बच्चा 10 में से 10 लेक्चर यूनिट 1 में कंप्लीट करता है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। उसी तरीके से यूनिट 2 में अगर बच्चा 9 में से 9 लेक्चर अटेंड करेगा तो उसको हम क्या देंगे, 2 मार्क्स देंगे। या उसका भी हम 75% ले लेंगे, 75%। तो टारगेट तो मैक्सिमम तो 10 थे, तो अगर वो 75% अटेंड करता है, मतलब 7.5 लेक्चर, तो उसको हम क्या करेंगे, 3 ग्रेड दे देंगे। वो हम आगे देखेंगे। तो मार्क्स की फॉर्म में है, पर हम ग्रेड की फॉर्म में भी देखने वाले हैं। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के मेथड का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये बताना होता है कि अटेंडेंस का कितना वेटेज है, MST कितने नंबर की होगी, थ्योरी क्विज कितने नंबर का है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अटेंडेंस को आपने 2-2 नंबर का वेटेज दे दिया फॉर ईच यूनिट। अब MST के केस में MST हमारी 20 नंबर की होती है, तो हमने डिसाइड किया कि हर एक यूनिट से हम 4-4 नंबर का यहाँ पर पूछेंगे। थ्योरी क्विज 10 नंबर का है, तो हर एक यूनिट में से हम 2-2 नंबर का पूछ लेंगे। उसी तरीके से थ्योरी असाइनमेंट भी 10 नंबर का है, प्रैक्टिकल 10,
प्रैक्टिकल असाइनमेंट 10, प्रैक्टिकल क्विज 10, प्रैक्टिकल वाइवा 10 और बाकी के मेथड्स को मैंने 0 कर दिया। इसका मतलब इन मेथड्स को मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं जो मेथड्स यूज़ करने वाला हूँ वो ये मेथड्स यूज़ करने वाला हूँ, ओनली दिस मेथड्स। तो हर सब्जेक्ट में ये जो मेथड की चॉइस है वो अलग अलग हो सकती है। अगर सपोज केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें एमएसटी नहीं होगा, थ्योरी क्विज भी नहीं होगा, तो उसमें फिर हम केवल प्रैक्टिकल वाला पोर्शन ले लेंगे, तो केवल उन्हीं को मार्क्स देंगे। तो जहां आपने 0 लिखा हुआ है इसका मतलब वो मेथड्स आप यूज नहीं कर रहे हैं, और जहां आपने नंबर अलॉट किए हैं मतलब वो मेथड आप असेसमेंट के लिए यूज करेंगे। एम आई क्लियर? मैं सर सर ये जो नीचे परसेंट निकल के आ रहे हैं 11%, 11%, क्लास परफॉर्मेंस वाले कॉलम में, ये तो ऑटोमेटिकली निकल कर आ रहे हैं। हमको सिर्फ येलो शेडेड जो पोर्शन है करेक्ट, उसमें एंट्रीज करना है। बस येलो वाला जो पोर्शन है वो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अलॉट करना है कि आप अटेंडेंस को कितना वेट दे रहे हैं, एमएसटी को कितना वेट दे रहे हैं, थ्योरी क्विज को कितना वेट दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। सर फिर भी एक जनरली जानना चाह रहा था मैं, ये 11% कैसे निकल के आ रहा है? हाँ वो मैं आपको बता दूं, 11% इस तरीके से आ रहा है कि जैसे CO1 है, CO1 का टोटल कितने नंबर का है हमारा? 18 नंबर का है, ठीक है। अब 18 में से आपने यूनिट 1 में जो अटेंडेंस उसको 2 नंबर दिया, तो 18 में से 2 का कितना परसेंटेज आएगा? जैसे यूनिट 1 जो है वो टोटल 18 नंबर का है, ठीक है, टोटल 18 नंबर है, पर वो 18 नंबर को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि आपने क्लास अटेंडेंस को 2 नंबर दिए हैं, एमएसटी को 4 नंबर दिए हैं, थ्योरी क्विज को आपने 2 नंबर दिए हैं, थ्योरी असाइनमेंट को आपने 2 नंबर दिए हैं। तो जहाँ जहाँ आप 2 देख रहे हैं मतलब 18 का 2 नंबर कितना होता है? 11% होता है। 4 कितना होता है? 22% होता है। तो उसका वेट, हाँ उसका वेट है कि 18 के रिस्पेक्ट में उसका कितना वेट है। तो 18 में से अगर आप 2 दे रहे हैं तो 11% का वेट है उसका, हाँ ठीक है सर। उसी तरीके से हमने हर यूनिट के लिए ऐसा कर लिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे थ्योरी क्विज मैंने 2 नंबर करे, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। टोटल मार्क्स आपने 10 लिए हैं तो किसी यूनिट को आप 3 नंबर कर सकते हैं, किसी को 1 नंबर कर सकते हैं, और ओवरऑल सम उसका 10 आएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये टोटली टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मेथड को, समटाइम्स आरजीपीवी के केस में तो बहुत सारी चीज़ें हमें दी होती हैं, जैसे एमएसटी 20 नंबर का ही होता है, ये हमें पता होता है तो हम उतने के रखते हैं। पर जो अलग अलग मेथड है जो आरजीपीवी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जो आप अपनी तरफ से ले रहे हैं, उन मेथड को आप कितने भी मार्क्स अलॉट कर सकते हैं, ये फैकल्टी के ऊपर है। तो इस तरीके से हमने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, मेथड भी चूज कर लिए कि कौन कौन सी मेथड हम परफॉर्म करने वाले, मतलब बच्चे को हम क्या क्या किस किस तरीके से असेस करने वाले, तो वो मेथड्स आपने चूज कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं असेसमेंट के ऊपर। ये जो सीट आपको दिख रही है, अब क्या करना है आपको, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास परफॉर्मेंस अटेंडेंस, तो ये जो ब्लॉक है मेरा, अब आपने यहाँ पर कितने लिए थे कि यूनिट 1 को कंप्लीट करने में आपने 10 लेक्चर लिए, यूनिट 2 के लिए आपने 9 लिए, ये 10, 8, 10। अब बच्चे ने कितने अटेंड किए, तो आपने यूनिट 1 में 10 लिए, पर बच्चा जो है मुस्तफ़ा उसने केवल 5 ही लेक्चर लिए, एक बच्चे ने 6 लेक्चर लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है वो यूनिट वाइज अटेंडेंस है बच्चे की। तो जो अटेंडेंस आप लेते हैं रजिस्टर में या एक्सेल शीट में, वो अटेंडेंस आपको यहाँ फिल करना है। तो यूनिट 1 का होगा पहला, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। क्लियर है सर? हाँ सर। है ना। तो हर मेथड का सपोज आपने क्लास, तो इसका आपने अटेंडेंस डाल देना बच्चे की। अब एमएसटी आपने करवाया, तो एमएसटी में बच्चे के कितने मार्क्स आए, वो मार्क्स आपको यहाँ फिल कर देना है। तो नॉर्मली यूनिट वाइज अपना कितना था, 4-4 नंबर का था, हर यूनिट से हम 4 नंबर का पूछ रहे थे, तो 4 में से बच्चे के कितने आए, तो वो मार्क्स आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसी तरीके से थ्योरी क्विज में बच्चे के कितने मार्क्स आए, उसके बाद थ्योरी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल वर्क, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल क्विज। तो जो भी मेथड आपने वहाँ चूज किए थे उन मेथड को आपने परफॉर्म किया, बच्चे को असेस किया, और असेस करने के बाद जो भी मार्क्स उसके आए वो मार्क्स आपको यहाँ फिल कर देना, ठीक है। अब आरजीपीवी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है उसमें हमारे पास ग्रेड आती है, जैसे कि मैडम का क्वेश्चन भी था कि उसको कैसे करेंगे, उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, तो नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हम आरजीपीवी थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करते हैं उसमें जो रिजल्ट आता है वो ग्रेड के फॉर्म में आता है, तो आपको बच्चे का रिजल्ट यहाँ फीड कर देना है। तो थ्योरी रिजल्ट आपने फीड कर दिया और प्रैक्टिकल रिजल्ट आपने फीड कर दिया, तो ये जो ग्रेड आप यहाँ लिखेंगे उसके ऑटोमेटिकली वो उसका अटेनमेंट लेवल यहाँ डिसाइड कर लेगा 2 है या 2 है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कई लोगों के बी सी भी आए, तो उस तरीके से यहाँ पर हमारा अटेनमेंट ये फिक्स हो जाएगा।
तो ये बेसिक क्लियर है क्या? फिर उसके बाद अपन और डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होनी चाहिए। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना ही पर्याप्त है। ये जो येलो वाला एरिया है ना, आपको केवल मार्क्स भरना है, बाकी चीज़ें ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगी। वो तो अगर कोई एक भी सीख लेगा तो वो बाद में बता सकता है। बाकी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप ये येलो वाला एरिया, इसमें केवल आपको आपके असेसमेंट मेथड के मार्क्स फिल करना है, और मार्क्स फिल होते से ही ऑटोमेटिक आपका अटेनमेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। महेंद्र सर, क्लियर है ये? यस सर, किसी को कोई डाउट रहा तो वो पूछेगा 2 मिनट में। हाँ, कोई डाउट है इसमें? सर मेरा ये डाउट था। जी हेलो जी जी, बोलिए सर, बोलिए। सर, ऑडिबल? हाँ सर, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज आस्क। सर मेरा ये डाउट था कि अगर किसी स्टूडेंट को ग्रेड डी या एफ आ रही है, हाँ वो भी मेंशन्ड है इसमें? हाँ, वो भी क्योंकि आपने मेंशन है। हाँ, ये जो मिनिमम आपने सी दिया है वो इस पर्टिकुलर शीट को ध्यान में रखते हुए होगा ना सर? नहीं नहीं, इसमें मैं अब आपको फॉर्मूला जब बताऊंगा ना मैं आपको, जी तब मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको क्लियर होगा। प्लीज। हाँ, जैसे अब आप देख रहे हैं, मैंने अब यहाँ क्लिक किया, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है सर आपको? यस सर। तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि अटेनमेंट लेवल 3 के लिए मैंने कौन कौन सी ग्रेड को कंसिडर किया, ए प्लस और बी प्लस। अब मैं 18 पे क्लिक करता हूं, तो जो क्राइटेरिया मेरा सेकंड वाला है उसके लिए मैंने किसको कंसिडर किया है, सी प्लस और केवल बी को। तो अटेनमेंट लेवल 3 के लिए मैंने किसको, ए प्लस, ए और बी प्लस, ये मेरा 3 के लिए कंसिडरेशन है। और 2 के लिए क्या है, सी प्लस और बी। और 8 पे जब मैंने क्लिक किया तो ये क्या है, सी, ये ग्रेड भी हो सकती है, सी शार्प शार्प, डी ग्रेड भी हो सकती है, और डी शार्प शार्प ग्रेड भी हो सकती है, और एफ ग्रेड भी हो सकती है। तो ये सारे बच्चे किस में जाएंगे मेरे, 1 में, द 3 to 1, तो ये 1 लेवल में जाएंगे। तो अगर मेरा अटेनमेंट लेवल 1 होगा कब, जब बच्चे की ग्रेड सी है, सी हैश है, या डी है, डी हैश है, या एफ। आई थिंक इसके अलावा और कोई ग्रेड नहीं होती है जहाँ तक मुझे पता है। ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी, और डी में भी डी हैश एस और सी हैश एस, आई थिंक ग्रेस होता है, ग्रेस, और एफ मतलब फेल। एम आई क्लियर सर? यस सर। है ना? तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप केवल अपने यहाँ पर जो भी ग्रेड्स आए हैं बच्चे के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में, ये 2 कॉलम में आप उनको भर दीजिए, तो एफ भी आएगा तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट विद क्राइटेरिया, तो 34। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ए प्लस ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है और बी प्लस ग्रेड मिला है, वैसे 34 बच्चे हैं, ठीक है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्राइटेरिया -15%, मतलब क्राइटेरिया से 15% बिलो है, तो ऐसे केवल 18 बच्चे हैं। मतलब ऐसे 18 बच्चे हैं जिनको बी और सी प्लस मिला है, बी और सी प्लस मिला है, ऐसे 18 बच्चे हैं। और ऐसे केवल 8 बच्चे हैं जिनको सी ग्रेड मिला है, सी शार्प हैश मिला है, डी मिला है और डी हैश मिला है। और ऐसे 0 बच्चे हैं जिनको एफ मिला है। और एब्सेंट के लिए भी, अगर एब्सेंट अगर आपको डालना है इसमें, तो आप एब्सेंट के लिए क्या डालेंगे इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। एब्सेंट के लिए आपको डालना है ABS। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो आप उसके लिए जो एंट्री करेंगे, इसमें क्या एंट्री करेंगे, ABS, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला लगाते समय ABS को लिया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ABS की जगह A भी कर सकते हैं। क्लियर सर? यस सर। ठीक, यस सर। ओके। तो उसी तरीके से प्रैक्टिकल के लिए आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी तो सब मार्क्स फॉर्म में ही है। केवल 2 ही चीज़ें जो ग्रेड फॉर्म में आती हैं, थ्योरी और RGPV थ्योरी एंड RGPV प्रैक्टिकल, ये केवल ग्रेड फॉर्म में आते हैं। तो उसके लिए भी फॉर्मूला बना के अपन ने उस कन्वर्जन का छोड़ दिया कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज़ों को आप मार्क्स के फॉर्म में डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं फॉर्मूला लेवल पर कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को देखते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो अब हमारा जो अटेनमेंट लेवल 2 है, जो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अटेनमेंट लेवल 2 कैसे आया, ठीक है।
तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अटेनमेंट लेवल 2 कब आएगा, जब D7 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो D7 क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60। तो हमारे कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, तो 34, 18, 8 को जब आप सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा, हमारे टोटल 60 स्टूडेंट्स आएंगे। तो इस क्लास में 60 स्टूडेंट थे और कोई भी एब्सेंट नहीं था। कुछ बच्चों 34 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल किया, 18 बच्चे जो हैं जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, और 8 और भी हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो टोटल अब आप क्या करेंगे, तो 57% आ रहा है, मतलब 34 का 60 में से कितना परसेंट आएगा, 57%। अगर आप 34 स्टूडेंट क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आउट ऑफ 60, तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो इट विल बी द 57%। ठीक है, और 57% जो है वो किसके बीच में आता है, हमने जब देखा था तो अटेनमेंट लेवल 3 कब आएगा, जब 60 से ऊपर होगा, आपको याद होगा। और अटेनमेंट लेवल 2 कब आएगा, जब 33 और 60 के बीच में होगा, या 40 और 60 के बीच में होगा। और अटेनमेंट लेवल 1 कब आता है, जब 40 से कम होता है। एम आई क्लियर? यस सर। है ना। तो उसी तरीके से आप जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा ये 65% आया हुआ है, किसमें, इस वाले केस में। आई थिंक हाईलाइटेड सेल आपको दिख रहे होंगे, मैं और बड़ा कर देता हूँ उसको। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा अटेनमेंट परसेंटेज है। तो मेरा जो थ्योरी प्रैक्टिकल उसमें 57% अटेनमेंट आया, इसलिए ग्रेड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है मेरा अटेनमेंट लेवल 1 2 3 की फॉर्म में। और ये 65 है इसलिए 3 आ रहा है, या 50 है इसलिए 2 आ रहा है, 100% पे 3 आ रहा है। देखिए तो मेरा MST में जो है वो मेरा 100% अटेनमेंट है, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा मार्क्स लिए। तो जो परसेंट वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। एक बार परसेंटेज हमारा आ गया और उसके बाद फिर हम अटेनमेंट लेवल निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया, कि अगर वो 60% से ऊपर है तो हम बोलते हैं अटेनमेंट लेवल 3। सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे कि भाई M7 की वैल्यू अगर 0 है तो 0 कर दो, अदरवाइज M8 देख लो आप। और इस फॉर्मूले को करके हमने यहाँ पे 1 2 3 की फॉर्म में अटेनमेंट लेवल को यहाँ पे ले लिया। इसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो बताइएगा। ठीक है, तो ये अटेनमेंट लेवल जैसे ही आएगा तो अब हम वापस जा रहे हैं जहां हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसके नीचे हमने यहाँ पे मैपिंग और अटेनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा अटेनमेंट है। तो ये जो हमारा अटेनमेंट था, ये जो हमारी ये मैपिंग है, सॉरी ये जो है हमारी, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ ये मैपिंग है अटेनमेंट बेस्ड ऑन असेसमेंट। अच्छा, ये जो अटेनमेंट है बेस्ड ऑन असेसमेंट है। पीछे हमने यहाँ जो दिया था, सपोज हमारा ये 2-2 है, ये 2-2 कहाँ आएगा, हमारा इस जगह आ गया 2-2। ठीक है, क्लास अटेंडेंस का अटेनमेंट कितना था हमारा, 1311। तो ये असेसमेंट में क्लास अटेंडेंस का कितना है, 13111। केवल हमने क्या किया, उसको वर्टिकल लिख दिया। तो हॉरिजॉन्टल जो था उसको हमने यहाँ पे वर्टिकल लिख दिया है फॉर द ईज, कि जो क्लास पर को अटेंडेंस कितना आया हमारा, 1311। जैसे MST का अटेंडमेंट कितना आया, 2333। तो ये ऑटोमेटिक होगा, ये आपको नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक मैप्ड है। तो जैसे ही आप यहाँ डालेंगे तो ये जो हमारा अटेनमेंट लेवल है ऑटोमेटिकली इस शीट में फिल हो जाएगा। क्लियर है सर? यस सर। है ना। तो अगर आप यहाँ से इसको अगर हम समराइज करें तो ये जो शीट है, इस शीट क्या बता रही है हमें कि CO1 और अटेंडेंस के बीच में कितना अटेनमेंट आया, 1। CO1 और MST के बीच का अटेनमेंट कितना आया, 2। CO1 और थ्योरी क्विज का अटेनमेंट कितना आया हमारा, 3। तो ये मेथड और CO का अटेनमेंट है कि भाई CO1 मतलब यूनिट 1 में जब आपने MST परफॉर्म कराया तो आपको अटेनमेंट 2 हुआ है। जब आपने थ्योरी कुछ परफॉर्म किया तो आपको यूनिट 1 में 3 अचीव हुआ है। जब आपने थ्योरी असाइनमेंट दिया यूनिट 1 के अंदर तो आपको अटेनमेंट 3 आया हुआ है। ऐसे क्या करते हैं, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एक बार एवरेज आ गया, फिर एवरेज का अपन सम कर देते हैं 2.78। एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब हमारा RGPV के जो मेथड है, थ्योरी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी असाइनमेंट, उसका कितना आया, 2। अब ओवरऑल अटेनमेंट कितना है हमारा, 2.62। ये कैसे निकालते हैं, 20% यूनिवर्सिटी थ्योरी और 80% इंटरनल असेसमेंट। अब ये जो क्राइटेरिया कहाँ से आया, ये हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। 20% यूनिवर्सिटी का ले रहे हैं, 80% इंटरनल असेसमेंट का ले रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि अगर हम पूरा वेटेज यूनिवर्सिटी को दे देंगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो बीइंग
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इंटरनल असेसमेंट को ज़्यादा वेटेज देते हैं, और वो हमारे फेवर में भी है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में होता है, बाकी थ्योरी जो होता है वो हमारे आरजीपीवी थ्योरी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, 20% जो वेटेज है वो यूनिवर्सिटी को दिया है, और 80% वेटेज जो है वो हमारे इंटरनल असेसमेंट को दिया। तो उस बेसिस पे 80% हम किसका निकालेंगे, 2.78 का, और 20% हम किसका निकालेंगे, 2 का। तो ऐसे करके जब आप ओवरऑल अटेनमेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 2.62। इस सीट में अगर आपको दिख रहा हो तो ये ओवरऑल अटेनमेंट कितना है, 2.62। और 3 के ग्रेड में जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 87.41%। मतलब आउट ऑफ 3 अगर 2.62 है और इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी द 87.41%। तो ओवरऑल हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का जो अटेनमेंट है वो कितना है, 87.41%, डिपेंडिंग ऑन दीज असेसमेंट। इसमें कोई डिफिकल्टी है तो बताइए। नो सर। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का अटेनमेंट डिफरेंट जैसे आएगा। तो हमारे एक सब्जेक्ट का अटेनमेंट आ गया 87.41%। अब आगे क्या करना है, अब ये जो है ये हमारी मैपिंग है, जो मैपिंग हमने वहाँ की थी वो मैपिंग हमारी यहाँ पर आ गई, ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी सीट के अंदर, ये भी कुछ नहीं करना है आपको। जब आप वो भरेंगे वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अटेनमेंट आ जाएगा आपका। तो ये हमारी मैपिंग है। अब वहाँ पर ये हमारा अटेनमेंट लेवल है। तो जैसे आपने जब CO-PO को मैप किया था तो आपने क्या लिखा था, 3, कि CO1 मेरा PO1 से 3 मैप करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है पर अटेन कितना हुआ, 2.6। अब हम ग्रेडिंग के लेवल में बात कर रहे हैं, तो 3 में से कितना है, 2.6। ये कैसे आया कि 3 का मैंने क्या निकाल लिया, 87.41%, क्योंकि मैंने मैप किया था 3 पर अटेन कितना हुआ, 2.6। तो ये कैसे आएगा कि 3 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 87%। तो 3 का जब आप 87% निकालेंगे तो क्या होगा, 2.6। उसी तरीके से 2 का अगर आप 87% निकालेंगे तो 1.7। उसी तरीके से 1 का अगर आप 87% निकालेंगे तो 0.9। तो इसको बोलते हैं हम अटेनमेंट लेवल, CO-PO अटेनमेंट। तो पहला वाला ये जो था वो CO-PO मैपिंग थी, और ये इसका अटेनमेंट था, CO-PO अटेनमेंट। क्लियर है क्या, ये बताइए, कोई डिफिकल्टी इसमें? नो। है ना, तो ये हो गया, ठीक है। बाकी अगर डिफिकल्टी नहीं है तो ये यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। क्राइटेरिया और है, क्राइटेरिया और देख लीजिए एक बार। तो हर मेथड का क्राइटेरिया आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो क्राइटेरिया लेके चले थे, तो जो हम बात कर रहे थे कि थ्योरी के लिए तो एक्सटर्नल एग्जाम के लिए ग्रेटर देन 70%, तो नॉर्मली वो बी ग्रेड होता है। तो इफ द परसेंटेज स्टूडेंट ग्रेटर देन 70% और 60%, तो स्कोर क्या आएगा, 3 to 1। उसी तरीके से अटेंडेंस का क्राइटेरिया है ये, MST मार्क्स का क्राइटेरिया, थ्योरी क्विज का क्राइटेरिया, सर्वे का क्राइटेरिया। तो ऐसे जितनी भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, हर मेथड का क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर, कि आप क्या क्राइटेरिया लेना चाहते हैं। तो इसी क्राइटेरिया के बेस पे फिर हम बाकी फॉर्मूले डिज़ाइन करते हैं। तो उस टाइम जब हमने डिज़ाइन किया था तो नॉर्मली हम ये क्राइटेरिया लेके चले थे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने असेसमेंट शीट को यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। मयंक सर बताइए, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए, अदरवाइज एक मतलब फैकल्टी लेवल पे तो कंप्लीट है। मतलब फैकल्टी को हर फैकल्टी को ज़्यादा नहीं करना। बाकी फिर और भी चीज़ें हैं कि हर सब्जेक्ट को कंबाइन करके अपन को सिंगल प्रोग्राम आउटकम निकालना है, तो वो फिर मैं आपको बता दूँगा। Yes, sir. If anyone is having any difficulty, they will ask you. Sir, I think ठीक, सर एक डाउट है। जी बताइए। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, मयंक भट्ट बोल रहा हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर अपन ने जो PI इंडेक्स में जो अपन मैपिंग करेंगे, जी तो इसमें जो आप 1 जहाँ अपन मेंशन करेंगे,
तो उसके अकॉर्डिंगली आप बोल रहे थे 3 क्वेश्चन अपन बना लें, तो वो क्वेश्चन बैंक के अंदर डालेंगे इसी शीट में? हाँ, आप क्वेश्चन बैंक के अंदर बना के रख लीजिए। तो जब भी आप कोई एग्जाम कराते हैं बच्चों का, तो कोशिश करिए कि उनमें जी। से कुछ क्वेश्चन आप उस एग्जाम में पूछें उसी में से। तो ये इज इट मस्ट के इस क्वेश्चन बैंक में हम क्वेश्चन डालें या ब्लैंक भी रख सकते हैं उसको? क्वेश्चन बैंक को आप ब्लैंक पे रखते हैं। क्वेश्चन बैंक का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जब आप मैपिंग कर रहे हैं, तो मैपिंग करते समय जी। आपने जब किसी इंडिकेटर को सिलेक्ट किया है, तो आप जी। अपने क्वेश्चंस के अंदर उस मेथड का जरूर यूज करें। जैसे आपने बोला कि 1.1 तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, पता पड़ा कि पूरा कोर्स आपका फिनिश हो गया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का आपने यूज ही नहीं किया। जी जी। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जब आपने यूज नहीं किया, तो मैपिंग के समय आपने वहां लिखा था मैप हो रहा है, तो फिर हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आपने मैप कैसे कर दिया? ठीक है। तो उस जस्टिफिकेशन के लिए मैंने बोला था कि आप कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, जिससे आपको ये पता रहेगा कि जी। ये क्वेश्चन मुझे पूछना है, क्योंकि मैंने वहां पर उसको मैप किया था। क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चन को पूछ लोगे आप। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक थैंक यू। है, ओके। हेलो। हाँ सर। यस महावीर सर, मेरे ख्याल से डाउट सभी के क्लियर हैं। तो एक बार ये शीट हम लोग सबको शेयर कर पाएंगे, तो उसके बाद जब ये वर्क करेंगे तो कुछ डाउट्स निकलेंगे शायद से, हाँ ठीक है, फिर एक तो बार उस और कर टाइम लेंगे डिस्कस कर लेंगे। अपन। एक बार और कर So लेंगे। on behalf of whole the department, I would like to thank you and hope so we are having more such wonderful session in near future. So thank you very much sir. और if possible आप ये शीट शेयर कर पाएं तो ठीक है हम सर। लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। जी जी सर, मैं कर देता हूँ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महावीर सर। थैंक यू कपिल सर, थैंक यू।